Hello, dear friends, and welcome to the world of the International Fab Talks. We connect with many unsung heroes across the world. They could be from any field. It could be from the medical field. It could be from the world of music. It could be people who sing. It could be people who teach. It could be a social worker. It could be just anybody. There are several young unsung heroes who would like to give their very best to this world because they believe giving is, living. So when you give the best which is within you, that is how you begin to live. जो हमारे अंदर जो खूबी है सभी के साथ बांटे तो उसी को कहते हैं ना। तो चलिए हमारे साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे। ही इज मिस्टर, गेस व्हाट, हु इज दैट? यस, सोमदीप। Yes, Somdeep sir, Somdeep Roy is joining us all the way from Kolkata. He is an independent singer and a lyricist. तो ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं? ये तो लिरिसिस्ट की बात क्या है, इंडिपेंडेंट सिंगर कौन है, क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं? यस दैट वो सीखने के लिए, वो सुनने के लिए और वो समझने के लिए हमारे साथ चलिए हमारे गेस्ट को इनवाइट करेंगे। हेलो सर एंड वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द इंटरनेशनल फैब टॉक्स। Hello all. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए। फर्स्ट, सब लोग तो दूसरे दूसरे प्रोफेशंस लेते हैं, लेकिन आपको इस रुचि गाना लिखना और गाना भी, संगीत में आपका रुचि कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? ओके, तो मैं मेरा जवाब बंगाली में देना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो सब मोस्टली बंगाली है और मैं काम भी करता हूँ बंगाली लैंग्वेज के लिए जो है। তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যখন কলেজে পড়ি সেই সময় আমার নিজের লেখা গান প্রথম আমি লিখি এবং সেটা কম্পোজ করি এবং সেটা খুব আনফরচুনেট অবস্থাতে মানে হয়েছে। কারণ আমি ছোটবেলা থেকে আমার বাড়িতে আমার বাবাকে দেখেছি লেখালেখি করতে, আমার মা গানের টিচার। তো সেখান থেকে আমি এই এনভায়রনমেন্টটার মধ্যেই বড় হয়েছি যেখানে গান বাজনার চর্চা এবং লেখালেখির চর্চা হয়ে থাকতো। উম, সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে নিজের একটা ফিলিংকে জাস্ট কিছু ওয়ার্ডসে বন্ধ করেছিলাম অ্যাজ আ লিরিক্স, এবং সেটা যখন কম্পোজ করলাম এবং তখন আমি জাস্ট গিটার বাজানো শুরু করেছি, শিখছি গিটার। তো সাম বেসিক কর্ডস দিয়ে একটা গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা কম্পোজ হলো এবং সেটাকে যখন কিছু ক্লোজ সার্কিট বন্ধুদের মধ্যে শোনালাম তারা ওটাকে ভালো লাগলো, পছন্দ করলো এবং এই ফার্স্ট গানের যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমি পেলাম সেটা আমার কাছে খুব এফেক্টিভ ছিল। তো সেইভাবেই তারপরে আবার একটা নেক্সট গান করার চেষ্টা, এইভাবে জার্নিটা শুরু হয় ফর অ্যাজ আ সিঙ্গার সং রাইটার। তো এইটা আমার কলেজ লাইফের সেকেন্ড ইয়ার থেকে জার্নিটা শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটাকে যে প্রফেশন করব বা এটাকেই যে আমি নিয়ে আমার লাইফ লিড করব সেটা সেরকম কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু যখন আমি কলেজ পাস আউট করেছি সেই সময় আমি ক্যাম্পাসিং এ চাকরি পেলাম। চাকরি, আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। তো যখন আমি চাকরি পেলাম এবং চাকরি জয়েনের জন্য অনেকটা গ্যাপ ছিল আমার কাছে, অ্যারাউন্ড 8-9 মাস মতো একটা টাইম ছিল যে 8-9 মাস পর আমাকে জয়েন করতে হবে। সেই টাইমটা, ওই যে ব্ল্যাঙ্ক স্পটটা আমার কাছে ছিল, সেই সময়টা আমি মানে চূড়ান্ত পর্যায়ে মিউজিক করেছি, প্র্যাকটিস করেছি, লিখেছি। ওই ফেজটা থেকে তারপর আমার বেরোনোটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে গেল। সো তখন আমি একটা সময় পর আমার মনে হয়েছিল যে আমি যদি চাকরি করি, আহ, কোনো কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করি, তাহলে আমি যে টাইম স্প্যানটার মধ্যে আমার লাইফটা বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরে আমি আর মিউজিকটাকে অ্যাজ আ প্রফেশন আর সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারবো না। তো প্রথমে তো কিছুটা করব চাকরি না করব না এই ডিলেমায় কিছুটা কাটিয়ে কাটিয়ে ক্যাম্পাসিং এর যে চাকরিটা ছিল সেটা ছেড়ে ছেড়ে দিলাম। দিয়ে টুকটাক ফ্রিল্যান্সে কিছু কাজকর্ম করতাম, করতে করতে এইরকম ভাবেই 1-1.5 বছর কেটেছিল। দেন আফটার দ্যাট আই ডিসাইড যে না, চাকরি করব এই মাইন্ডসেটটা রাখলে চলবে না। এই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে জাস্ট ফোকাস অন মিউজিক, প্র্যাকটিস এবং মিউজিকটাকেই আমি আমার মানে আমার প্যাশনটাকে আমি প্রফেশন করব। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওই আফটার 2000, আমি 2015 পাস আউট, 2015, 16, 17 থেকে আমি ফুল ফ্লেজেড মিউজিক করা শুরু করি এবং সেখানে লাইভ শোজ, রেকর্ডিং সেশন এবং প্লাস আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে শেখানো,
এটা একটা বিগেস্ট পার্ট। সো এই মিউজিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যেই তারপর থেকে লাইফটা চলছে। यस सर, बहुत खूब सर। 2015 में आपका एजुकेशन खत्म हुआ और 2017 में यू बिकेम अ फुल फ्लेज सिंगर एंड अ लिरिसिस्ट, अ म्यूजिशियन एंड ऑल ऑफ दैट। दैट्स रियली नाइस, कनेक्टेड टू द म्यूजिक वर्ल्ड। ये तो फिर आपका सपना सच हुआ। हाँ, सपना सच हुआ। ये शायद अ, कुछ कम लोगों को ही होता है कि वो पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकता है। जी सर। तो ये मेरे लिए हुआ कि मैंने मेरे पैशन को ही प्रोफेशन किया। जी सर। अब जब छोटे थे, बिलो द एज ऑफ 10, 10 साल के अंदर, छोटे बच्चे जब थे, तब क्या ये मन में था मैं बड़ा बनकर इंजीनियर बनूं या एक म्यूजिशियन बनूं? कहाँ ऐसा कुछ थॉट आया था आपको तब? हाँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना था। मुझे आईटी पसंद था, कंप्यूटर साइंस पसंद था। तो मुझे यही था कि मैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनूंगा या आईटी इंजीनियर बनूंगा। मगर घर से वो नहीं था, तो घर में मेरा बाबा जो है वो भी सिविल बैकग्राउंड से है, तो उस उनने सिविल में ही डाल दिया मुझे। तो उसके लिए मुझे वो पैशन तो नहीं रहा कि कंप्यूटर साइंस करना है, तो सिविल का मुझे कुछ भी पता नहीं था जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। फिर वो तो इंजीनियरिंग के साथ हो गया, अच्छे मार्क्स के साथ पास पास भी हो गए। तो इनिशियल स्टेज में जो पैशन होता है हर एक का, जो मुझे क्या बनना है, तो वो मुझे था कि मुझे आईटी इंजीनियर बनना है। मगर उसके टाइम के साथ साथ वो तो चला गया, फिर म्यूजिशियन ही बन गया। जी सर, जी सर। जी सर, हम ये पूछना चाहेंगे, आपका इंस्पिरेशन कौन है? अभी आपने पैशन टू प्रोफेशन बना दिया अभी, तो आपका कोई तो इंस्पिरेशन होगा। आपका मम्मी जी जो है, वो तो भी संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। तो हाँ, क्या मम्मी आपका इंस्पिरेशन या कोई और है? इनिशियल जो मेरा इंस्पिरेशन है वो तो मम्मी है, क्योंकि मम्मी को देख के ही मैंने गाना सीखा या फिर गाने के बारे में जाना। उसके बाद बहुत सारा इंस्पिरेशन है। मेरा जो मेन इंस्पिरेशन है वो यहाँ का कोलकाता का एक बैंड है, फॉसिल्स बोल के। उसका जो फ्रंटमैन है रूपम इस्लाम, वो मेरा मेन इंस्पिरेशन है, जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया या फिर खुद का कॉम्पोजिशन किया। उसके बाद वर्ल्ड्स का बहुत आर्टिस्ट है, बहुत बैंड्स है, बीटल्स है, लेड जेपलिन है, स्कॉर्पियंस है, ऐसे डेफ लेपर्ड है, ऐसे बहुत सारा बैंड है जो मेरा मुझे इंस्पायर किया है। उसके म्यूजिक मुझे इंस्पायर किया है। तो वो सब सुन के फिर वर्ल्ड का म्यूजिक जाना, सीखा, पढ़ा, उसके बारे में। उसके बाद ही हर एक जितना सुनता हूँ उतना ही इंस्पिरेशन मिलता है। जी, जी सर। सर, अभी हम ये पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह के गाना लिखते हैं? आई मीन, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स, कहाँ पर वो, इज इट बेस्ड ऑन फीलिंग्स, इज इट बेस्ड ऑन सिचुएशन? किस तरह के गाना लिखते हैं, हमें बता दीजिए। रोमांटिक गाना है या तो फिर दुख के साथ जुड़े हुए गाना? What's it? সব রকমের গানই লিখি, এবং গান লেখাটাই একটা ফিলিংস এর কাজ। মানে ফিল না এলে বা নিজের মধ্যে সেই ফিলিংসটা জেনারেট না হলে গান লেখা যায় না। এবং লাইফ এক একটা সং রাইটারের বা রাইটারের লাইফ যেই ডিরেকশনে চলে, লাইফ যে সিচুয়েশনস গুলোকে ফেস করে, তার উপরেই একজন রাইটার বা লিরিসিস্ট সেই ফিলিংস গুলোকেই অ্যাজ আ পোয়েট, অ্যাজ আ পোয়েট্রি হিসাবে লিখে রাখে। এবং সেই যে সেকশন, তার মধ্যে প্রেমও আছে, রোমান্টিক গানও থাকে, সেটার মধ্যে ব্রেকআপ থাকে, সেখানে সমাজের প্রচুর যে ইনসিডেন্টস আছে, সেই ইনসিডেন্ট গুলো নিয়ে গান লেখা। আমার পার্সোনালি আমি যে গানগুলো লিখেছি বা এখনো লিখে চলি, প্রেম আর বিচ্ছেদ মানে ব্রেকআপ, এই দুটো খুব কমন সাবজেক্ট গান লেখার জন্য। সো এই সাবজেক্টে গান সবাই লিখেছে, আমিও লিখেছি। কিন্তু আমার যেটা পছন্দের সাবজেক্ট সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ইনসিডেন্ট। সেটা সমাজে ঘটা প্রচুর ইনসিডেন্ট হতে পারে, আমি আমার চোখের সামনে দেখছি এরকম প্রচুর ইনসিডেন্ট হতে পারে। সেই ইনসিডেন্ট গুলো নিয়েই আমি ম্যাক্সিমাম গান আমার লিখেছি। আহ, এবং এখনো লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যে আজকে আমার সামনে, আমি চোখের সামনে যে ঘটনা দেখছি, সেটা ওয়ার্ল্ডের কোনো বিগ ইস্যু হতে পারে,
বা আমার বাড়ির সামনে কোনো একটা ইস্যু হতে পারে, আমার পাড়ায় একটা কোনো ইস্যু হতে পারে, সেই যে सिचुएशनটা, वो जो सिचुएशन होता है जिसके बारे में हम देखते हैं, टीवी में सुनते हैं, न्यूज या जो भी बड़ा बड़ा इंसिडेंट होता है, वो सब देख के ही मुझे ज्यादा लिखने का मन करता है, क्योंकि उसके बारे में भी मुझे कुछ बोलना है। तो मैं, मेरा बोलना जो है वो मेरा लिरिक्स ही होगा, मेरा गाना ही होगा। यही मेरा थॉट है। Excellent, sir. That's wonderful. Connected to life, like every day, what happens in life, connected to all of that, the feelings of people. It could be a romantic one, it could be a breakup as well. It could be all those, minute things that we overlook. But yes, a person who's a lyricist, a person who's a writer, a person who has a passion for art, creativity, innovation, they understand how to put it in the right words. Yes, sir. सर ये पूछना चाहेंगे, अगर हमारे जो दर्शक है कोई भी आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपसे जुड़े, आपका बैंड के साथ या आपके काम के साथ जुड़ना चाहेंगे आपके साथ, तो उनके लिए किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक या फिर मेरा नाम शोमुदीप रॉय है, SOUMYADIP इस नाम से मेरा फेसबुक पेज है, प्रोफाइल है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। वहां से आप डायरेक्टली मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो मेरा बैंड या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग को जो टीम मेरा संभालती है, उनके हिसाब से भी आप उससे भी कांटेक्ट करके मेरे थ्रू पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, जी सर। आपका बैंड के बारे में कुछ और बता सकते हैं कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंड एंड हाउ इट्स वर्क्स, व्हाट आर द टाइमिंग्स? मेरा बैंड का नाम है ब्लैंक स्पेस। 5 मैन बैंड है, 5 मेंबर है उसमें, इंक्लूडिंग मी। तो जब मैंने बहुत सारा गाना लिख लिया, मेरे पास 100 से भी ज्यादा गाना हो गया था, तब मैंने सोचा कि ये सिर्फ में सोलो जो परफॉर्म होता है एज अ सोलो परफॉर्मर, उससे बहुत सारा गाना है जिसका इमोशन जेनरेट नहीं हो सकता है। सिर्फ एक गिटार बजा के जो मुझे बोलना चाहिए, एक गाने में ऑर्नामेंट्स होता है जो म्यूजिशियन करते हैं, एक गाने को बहुत सारा ऑर्नामेंट से सजा के वो गाना एक कंप्लीट सॉन्ग होता है। तो बहुत सारा गाना मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारा ऑर्नामेंट्स की जरूरत है लाइव परफॉर्मेंस के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो तब जाके मैंने वो बैंड फॉर्म करने का सोचा कि मुझे मेंबर्स चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप चाहिए जिसके थ्रू मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रख सकूं गाने का। तब मैंने 2017 18 19 शायद 2019 में मैंने बैंड फॉर्म करने का सोचा। फिर एक एक म्यूजिशियन जुड़े, फिर 2019 में बैंड फॉर्म हुआ ब्लैंक स्पेस। Yes. Is it Blank Space, the band's name? ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक Excellent. स्पेस। Yeah, it's a nice one. It's a very catchy band name. That's really wonderful. Blank Space. Wonderful, sir. सर अभी हम ये पूछना चाहेंगे कि आप फिल्म गाना भी गाते हैं या सिर्फ सोलो सिंगिंग करते हैं या सिर्फ बैंड के साथ या लाइव शोज करते हैं? किस तरह के काम करते हैं सर? गाना गाना मैं हर तरीके से का गाना ही गाता हूँ। बैंड का जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, वहां पे एक मेरा बैंड का एथिक्स है कि वहां पे बंगाली गाना ही होगा जो परफॉर्मेंस में। अब वहां पे मेन फोकस रहता है खुद के गाने का, जो हमारा बैंड का या मेरा गाना है वही मेन फोकस रहता है। उसके साथ साथ एक कॉन्सर्ट्स में कवर सॉन्ग भी होता है, मगर वो बंगाली होता है, वो मेनली बैंड का होता है। इंडी माने कोलकाता का बैंड का होता है, वेस्ट बंगाल का, बांग्लादेश का बैंड का भी कुछ होता है, मगर वो बंगाली कवर सॉन्ग ही ज्यादा होता है। फिल्म का कवर सॉन्ग बैंड के साथ तो उतना परफॉर्मेंस नहीं होता है, शायद कुछ एक दो को छोड़ के। मगर मैं जब खुद सोलो परफॉर्म करता हूँ, तब मैं शायद कुछ फिल्म का बंगाली गाना करता हूँ। हिंदी में थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है कि वो गाने के साथ परफेक्टली बैठ जाए। तो इसके लिए मैं हिंदी मतलब गाना थोड़ा अवॉइड करता हूँ। अब जब मन करता है तब तो फीलिंग के साथ कुछ भी गा लेता हूँ। जी सर, जी सर। सर हम ये कहना चाहेंगे, अगर कोई दूसरा स्टेट, अभी भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, तो कोई दूसरा स्टेट आपको बुलाए, हमारे लिए शो कीजिए आप, हमारे लिए एक लाइव शो, हम वी वांट टू हैव अ लाइव शो, वुड यू ओब्लाइज?
टू सिंग. देर आर बंगालीज एवरीवेयर इन इंडिया. हर एक जगह में फैले हुए हैं. नो, बिकॉज पीपल आर मूविंग अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स. तो वहां पर कोई बंगाली ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन हो और आपको बुलाए परफॉर्मेंस के लिए, तो आप एग्री हो जाएंगे? या व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस टू हाँ यू? हाँ हाँ, ये तो मैंने पहले भी किया। कहीं से भी वर्ल्ड के कहीं किसी भी कोने से अगर बुलाते हैं कोई, तो वो मेरा धर्म है कि मैं वहां पे जाऊं और परफॉर्म करूं, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं। तो कहीं से भी बुलाए, अगर मेरा या बैंड का कुछ तो नॉर्म्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, उसके साथ अगर सब कुछ ठीक ठाक बैठता है तो दुनिया के किसी भी कोने पे बुलाए गाने के लिए हम जाएंगे। एक्सेलेंट. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. जब आप ये पैशन जो है, सिंगिंग, म्यूजिक, ये पैशन आप जब चुने, आप प्रोफेशन बनाने के लिए, तो घर वाले क्या बोले? एग्री हो गए? आपको एनकरेज करें? इनकरेज तो किया, मगर शुरू में ये पैशन करने, प्रोफेशन करने के लिए उतना राजी नहीं था, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एक म्यूजिशियन कोलकाता में रह के काम करे तो इकोनॉमिकल स्कोप उतना ज्यादा नहीं होता है कि आप शुरू में आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले आपके काम से। जब आप एक जॉब पे जाते हैं आपको वहां पे 25, 30, 35, 40, 50 जितना भी सैलरी मिलता है, वो इम्पैक्ट रहता है कि आपको महीने में आप काम किए, वो सैलरी आपको आया, आपने बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा किया उसमें। मगर हमारे लाइन में वो नहीं होता है, वो बहुत फ्लैक्चुएट होता है कि शुरू में एक टाइम के बाद वो स्टेगनेंट हो जाता है कि ठीक है, इतना तक तो मेरा महीने में आ ही जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस या फिर वो कांटेक्ट हो जाता है। मगर शुरू में क्या होता है कि इस महीने कितना शो मिला, नहीं मिला, तो वो इनकम थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है। तो इसके लिए इंडिपेंडेंटली बांग्ला गान करके यहाँ पे सेट होना थोड़ा तो मुश्किल है। मगर ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। तो अगर कोई स्ट्रगल कर सकता है तो डेफिनेटली स्टैंड करेगा, और उसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो डेफिनेटली स्टैंड करेगा। मगर वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, शायद वो स्ट्रगल एक जॉब से थोड़ा ज्यादा हो। जी सर, जी सर. सर, हम ये पूछना चाहेंगे, जब आप सॉन्ग्स लिखते हैं, तो क्या सुबह में या दोपहर, शाम में या रात में, जब सब सुनसान है, खामोश है, तब आपका ब्रेन ज्यादा वर्क करेगा और आप लिखोगे? तो ये टाइमिंग कब है जो आपका मन में से जो अच्छे थॉट्स, विचार हैं, गाने के रूप में आप लिखते हैं? कब? वुड यू लाइक टू शेयर? मोस्टली रात को, मिडनाइट या फिर एकदम सुबह के टाइम पे, जब पूरा साइलेंस रहता है। तो मेरा मोस्टली गाना वही टाइम पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा कुछ ऐसा भी होता है कि सडनली मुझे कुछ थॉट्स आया, रास्ते में आया, या फिर घर पे कुछ काम करते करते आया, मैं गिटार बजाते बजाते आया, म्यूजिक करते करते, तब मैं वहीं पे सडनली लिख लेता हूँ। एटलीस्ट थॉट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर बेस करके ये गाना बनेगा, वो बेस स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ। बाद में जाके उसको इलेबोरेट करके पूरा गाना लिखता हूँ। जी सर. आप बच्चों के लिए भी गाने लिखते हैं सर? बच्चों के लिए गाना मतलब कैसा? लाइक उन लोगों को करज देना, हिम्मत देना. कभी कभी छोटे बच्चे डरते हैं, आगे नहीं जाते हैं, या बहुत सेंसिटिव और शाय रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा सा घबराते हैं, या मन में कुछ नेगेटिविटी रखते हैं. तो ऐसे कुछ अच्छे एनकरेजिंग सॉन्ग्स, ऐसा कुछ? मैंने मैंने खुद का गाना तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मगर बहुत सारा गाना है जो मैं जो एज एज अ म्यूजिक टीचर में, तो मैं बहुत सारा बच्चों को सिखाता हूँ बहुत। तो उन लोगों को मैं बहुत ऐसा वर्ल्ड में गाना है, बहुत आर्टिस्ट का ऐसा गाना है जो मैं उन लोगों को सिखाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ सीखने के लिए। जी सर, जी सर. सर, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, खुद में क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट योरसेल्फ सर? ये खुद बोलना तो क्या बोलूं, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग अच्छा हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं है, कभी किसी से ऐसे, अगर बहुत जरूरत ना पड़े तो मैंने कभी किसी से रूडली बिहेव नहीं किया है।
जितना तक हो सकता है मैं खुद को रोक के रखता हूँ, या फिर खुद को ट्राई करता हूँ उससे निकल जाने के लिए। मगर मुझे किसी के साथ रूडली बिहेव करना और किसी का बुरा चाहना, ये नेगेटिव चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ इससे जितना खुद को संभाल के रख सकूं। इसीलिए जिससे भी मेरा रिलेशन होता है, वो लिसनर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, सबके साथ ही मेरा 90% और 95% तक मेरा वो रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। एक फ्रेंडली रिलेशन रहता है, क्योंकि मुझे लगता है खुद को जज करके मैं एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा अच्छा हूँ। जी सर, जी सर। अभी हम मूवीज को आते, वी कम टू मूवीज। आपको कौन सा मूवी पसंद है सर? कौन से मूवी के गाने पसंद है आपको, क्योंकि यू आर अ सिंगर, तो बंगाली या हिंदी? हिंदी भी और बंगाली दोनों भी। जैसे बहुत सारा है। बंगाली में अगर बोलूं तो जो आर्लीज एवरग्रीन मूवी होता था, सत्यजीत रे का, उस टाइम का जो मूवी है, उस वो मुझे मतलब शुरू से अच्छा लगता है। रिसेंट मूवी जो होता है उनमें भी अच्छा लगता है, मगर वो चूजेबल है। जैसे अनुपम रॉय है यहाँ पे, इंद्रजीत दाशगुप्त है, बहुत सारा ऐसे, कौशिक चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारा म्यूजिक डायरेक्टर है जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी में मैं थोड़ा सिलेक्टेड हूँ, क्योंकि हिंदी सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कुछ टाइप का, कुछ जॉनर का काम ही मुझे अच्छा लगता है। तो एक तो बोलना, एक दो मूवी बोलना बहुत मुश्किल है। मगर अच्छा गाना, अगर क्वालिटी सॉन्ग हुआ, उसका मेलोडी अच्छा हुआ, तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी मूवी का हो या कोई भी हो, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे मेलोडी और लिरिक्स दोनों पसंद होना चाहिए। ये मैन टू मैन वेरी करता है ना, कि किसको किस टाइप का म्यूजिक या किस टाइप का मेलोडी पसंद है। तो जो मेलोडी या जो लिरिक्स मुझे पसंद लगता है, वो चाहे हिंदी हो या चाहे बंगाली हो, उसमें पसंद है। एक मूवी बोलना इम्पॉसिबल है उसमें। जी सर, जी सर, आई कैन अंडरस्टैंड। सर अभी एक क्वेश्चन है। अभी छोटे बच्चे जो है, यंगस्टर्स, टीनेजर्स जो है, यूथ जो है, जो गाना सीखना चाहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, बैंड में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द एज लिमिट? देखिए, सीखने के लिए तो मुझे लगता है आफ्टर 4 ईयर, कोई भी एक बच्चे का 4 साल के बाद इंस्ट्रूमेंट या गाना कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा स्टेबल रहता है और समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं उनको। तो मुझे, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बेसिक 4 साल तक तो होना ही चाहिए, उससे पहले थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई मीन, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर देम टू ज्वाइन? कौन सी उम्र में वो ज्वाइन कर सकते हैं बैंड में या रियाज करने में? बैंड में ज्वाइन करने के लिए मैं बोलूंगा पहले सीखना जरूरी है। एक लेवल तक सीख जाए। अगर 4 साल का एक बच्चा ज्वाइन करता है, तो बैंड या कहीं पे परफॉर्म करने के लिए 10 साल चाहिए। 10 साल तक सीखो, उसके बाद कहीं पे ज्वाइन करो, कुछ करो। बैंड का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, अगर कोई बैंड में ज्वाइन करना चाहे तो। अगर वो खुद एज ए म्यूजिशियन कहीं पे बजाना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है, 4 साल का बच्चा अगर ज्वाइन करता है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 10 साल, उससे पहले नहीं। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो वो तो अगर अच्छे से सीखे तो वो 3 साल 4 साल में भी ज्वाइन कर सकता है। जी ये एज के हिसाब से होता है ना, क्योंकि एक 4 साल का बच्चा जब 10 साल का होगा, 6 साल सीखे, 10 साल का बच्चा बजाएगा कहाँ? उसका एक तो ग्रुप होना। अगर मेरे बैंड में मैं एक 10 साल का बच्चा तो नहीं लूंगा, क्योंकि उसी तो बजाने से नहीं होता है, मेंटालिटी भी होता है। उसको वो समझना पड़ेगा, वो मैच्योरिटी होना चाहिए। तो 10 साल के बच्चे के लिए मैं बोलूंगा एटलीस्ट 10 साल। और स्कूल स्टूडेंट 10 11 या फिर कॉलेज स्टूडेंट, वो 3 4 साल तक, 5 साल तक भी अगर अच्छे से सीखता है, तो वो कहीं पे चाहे तो ज्वाइन करके बजा सकता है। जी सर।
सर अभी एक बड़ी क्वेश्चन है सर, क्या आप सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। यस, दैट्स रियली नाइस। अगर कोई पेरेंट या कोई अपने चिल्ड्रन को आपके आपसे सीखना चाहेंगे, they would want their children to learn music from you and take up lessons, so they should connect with you through the social media, है ना सर? सोशल मीडिया, या फिर स्टूडेंट के लिए जो मुझसे क्लास लेना चाहता है, वो मुझसे फोन पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बेसिकली। तो मेरा नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूँ? जी जी, प्लीज प्लीज कर दिए तो हो जाता। इफ somebody is interested they can connect with you ना सर? तो मेरा पहला तो है कि आप अगर गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके आप गिटार क्लास बाय शोमिया सर्च करते हैं, तो पहले ही मेरा ये आ जाएगा। आपको गूगल का जो प्रोफाइल होता है, बिजनेस प्रोफाइल, वो आ जाएगा। वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9883 584 303। ये मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है, इससे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट दोबारा भाई? एक बार शेयर कीजिए, दोबारा एक बार शेयर कीजिए आपका नंबर। 9883 584 303। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स रियली नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स यू आर इंटरेस्टेड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि लग रहा है कि भाई आपका बच्चा या बेटी या बेटा को कुछ सीखना है, उसका हुनर अभी आगे ले बढ़ाना है, उनका हुनर जो भी है अंदर उसको और शार्पन करना है, sharpen the skills of singing, you could always connect with our special celebrity and guest, connect कर सकते हैं and allow your children to learn, be creative. It could be art, song, dance, music, etc. Even allow them to even take part in sports, so that's beautiful. Sir, हम ये पूछना चाहेंगे, क्या आप छुट्टियों पर कहीं जाके आ चुके हैं, कोई दूसरा स्टेट या कंट्री? बस छुट्टी मनाने गए थे और फिर आ हाँ गए? कौन हाँ, से बहुत स्टेट सर? बहुत सारा जगह पे गए हैं। सबसे फेवरेट कौन सी है सर? मेरा माउंटेन, या दार्जिलिंग, नॉर्थ बंगाल। यस सर। आप भारत के बाहर गए हैं आप? भारत के बाहर मैं सिर्फ जापान गया हूँ। ओ ग्रेट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा, इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री। इतना ही मतलब हम्बल लोग मुझे शायद ही कहीं देखने को मिला है, या फिर नहीं मिला है। इतना हम्बल होते हैं वहाँ के लोग, इतना हेल्पफुल होता है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं हर वहाँ के पर्सन को, और कंट्री को इतना प्यार करते हैं वहाँ के लोग। वो आपको हर एक जगह पे मिलेगा, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो किसी मकान हो, किसी घर, हर जगह पे। ओवरऑल कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, और वहाँ का लोग जो अपनी खुद की कंट्री को खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो कंट्री क्लीन रहे। वो सब कुछ वहाँ का जो लोग है, बाहर से जो हम लोग जैसे लोग जाते हैं, उनसे भी इंटरेक्ट अच्छा हो। चाहे वो जापानी समझ में, जापानीज बोल सके या ना सके, कुछ भी हो, उनसे इंटरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से। आपको कैसे भी करके वो हेल्प कर देगा। आप अगर उससे कुछ हेल्प मांगे तो वो इशारा करके या फिर खुद काम करके बता देगा। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। दैट्स ब्यूटीफुल। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करना चाहिए, हम भी सभी का सम्मान और आदर डेफिनेटली करना है। डेफिनेटली करना अपना चाहिए। कंट्री भी साफ सुथरा रखना है, गंदगी से उसे नहीं डिस्ट्रॉय करना है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर कंट्री एज वेल, लाइक हाउ अदर कंट्रीज आर टेकिंग, तभी जाकर भारत महान होगा। सिर्फ बोलने से महान नहीं होगा, करके दिखाने से महान होगा। Yes, एग्जैक्टली। that's wonderful, sir. Thank you very much for sharing about your experience in Japan, all the beautiful things that you've shared. Sir, अगर लोग आपको याद करना है, या लोग आपको किस बात के लिए याद करना है और क्यों? मेरे खुद के म्यूजिक के लिए, जो भी मुझे याद करे, उसका दो अलग अलग दिख है। एक है कि अगर कोई मेरा गाना पसंद करना चाहता है, तो वो एज अ सिंगर मुझे पसंद कर सकता है। और एक है कि एज अ इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर के रूप से मुझे पसंद करे, कि मेरा खुद का गाना मुझे मेरा जो गाना है वो सुन के वो कनेक्ट करे, उसको अच्छा लगे। तब जाके वो मेरा उस रूप से पहचाना जा सकता है कि इसका ये गाना मुझे अच्छा लगा।
और एक होता है कि अगर मैं कुछ कवर सॉन्ग गाऊं या फिर कोई भी गाना गाऊं, वो एज अ सिंगर मुझे पसंद करे। ये दो ही दिखे, कोई भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी सर। सर अभी एक बड़ी सी क्वेश्चन आया है अभी मेरे मन में। थोड़े लोग, क्या हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं? आपने मेंशन किया था अर्लियर ब्रेकअप, या मम्मी पापा से गुस्सा, या दोस्त से कटीफ हो गई, या सहेली से कटीफ हो गई, बातचीत नहीं हो रही है, या भाई बहन का रिश्ता टूट गया है, कुछ कोई कुछ वजह कुछ भी हो सकता है। हम्म। इंसान गम में डूब जाता है, डिप्रेशन में डूब जाता है। क्या आप ऐसे भी गाने लिखते हैं जहां पर वो कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा फीलिंग्स, तो क्या ऐसे गाने भी लिखते हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं वो? बहुत बहुत लिखा है ऐसे, हमारे लिए क्योंकि वो छोटी सी। मेरे मेरे साथ भी हुआ है, मेरा जान पहचान के साथ भी हुआ है, तो वो तो मैंने बहुत सारा लिखा है। जी जी। हमारे लिए एक छोटा सा गाना गा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, बंगाली में, हाँ हाँ। जी जी सर। We'd love to hear you sing. Friends, join us to listen to our beautiful celebrity and guest, his voice. Yes, over to you, sir. মৃত জোনাকির ভিড়ে জেগে মগজে কড়া নারে শব্দের প্রবচন। মৃত জোনাকির ভিড়ে জেগে মগজে কড়া নারে শব্দের প্রবচন। তথ্য করছে ভাওতা বিরস্বী ইতিহাস, প্রশ্ন চিহ্নে প্রমাণ করছে অদৃশ্য জীবন। মৃত জোনাকির আগুন কবরে বারুদ হুমকি দগ্ধ চিতার উন্মোচন। দিনলিপি মেনে স্বপ্ন দেখে না র্যাডিকাল সমাজ, इतिहासे हासे ऐतिहासिक स्मृतिचारण। ये गाना जब मैंने लिखा था, इसका जो बेसिक स्टोरी था, जो हम लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो शायद जनरल स्ट्रीम में नहीं है, कि जॉब नहीं है जनरली, कुछ जो सब करते वो नहीं किया। चाहे कोई खेलना चाहता है, चाहे कोई पोएट बनना चाहता है, चाहे कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, ड्राइंग करना चाहता है, या फिर गाना लिखना चाहता है, गाना गाना चाहता है, उसके लिए वो थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाता है, जिसको हर एक फैमिली से या फिर हर एक सोसाइटी से बोलता है कि ये करके क्या होगा, तुम क्या कर लोगे इससे। तो ये शायद सबको सुनने को मिलता है। तो इसके लिए मैंने जो ये सोसाइटी के अगेंस्ट में जो कुछ बोलना था, तो ये मैंने उसको इसके लिए उसके ऊपर लिखा था। तो জোনাকি তুমি আমারই শেষ বেলায় এখনো জন্ম নাও। তো জোনাকি গান পেতে শুনি আর্তনাদ, একবার ঘুমিয়ে নাও, শেষ তোমার বিছানায় আরেকবার ঘুমিয়ে নাও। थोड़ा सा ये इसका गाना है। Excellent, excellent, sir. Beautiful. That's wonderful. Excellent. Beautifully sung. You have a lovely voice. You played the guitar also very well. Yes. थैंक And यू। I could see the passion that you have. Like you were immersed in that song. ऐसे आप खो गए उसमें जब गा हाँ। रहे थे. Yes, dear. That's really nice. Wonderful, sir. Thank you so much for obliging for singing a beautiful song for all of us. सर अब ये पूछना चाहेंगे, अगर आपको भगवान जी मिले और भगवान जी आपको एक तोहफा दे रहे हैं, क्या तोहफा मांगेंगे आप भगवान से? कोई भी तोहफा मांग लो बोलते हैं भगवान, तो आप क्या मांगोगे? आ, देखिए, ये थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल होगा शायद, मुझे जी पता नहीं। मगर मैं खुद में ही बिलीव करता हूँ ज्यादा। जी। आ, अगर कोई ऐसा स्पिरिचुअल कुछ है जो मुझे
शायद सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली हेल्प करे, तो मैं चाहूंगा कि मैं हेल्दी रहूं और मेरे में वो क्षमता रहे कि मैं नया गाना या फिर डेली खुद को अपडेट करके, अपग्रेड करके मैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ लिख सकूं, कुछ बोल सकूं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो वॉइस है वो सही रहे, मेरा जो हाथ है वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लायक रहे, मैं हेल्दी रहूं, ताकि मैं जो काम है, मेरा जो काम है वो मैं कर सकूं बस। Yes, sir. That's a beautiful way to put that. That's a very beautiful way to connect with the spiritual being or maybe the divine. You never know as to how the divine may bless you. All that you want is good health, peace of mind, and a good voice. Take care of your overall self. That's wonderful, sir. सर अब ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आगे आने वाले से 5 साल या 10 साल 50 साल भी कह सकते हैं, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं गाना को लेकर, म्यूजिक को लेकर? क्या लोग आकर्षित है जैसे पहले थे, जो इंटरेस्ट थे लोगों को म्यूजिक में, क्या आज भी उन लोगों को वही इंटरेस्ट है, या थोड़ा सा शिफ्ट है उनके सोच विचारों में? उनको फिर हमको बुला के उनको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट तो हर टाइम में होता है। अब टाइम के साथ जो पैटर्न है वो पैटर्न शायद बदल जाता है। आज कोई अगर बहुत मेटल म्यूजिक पसंद करता है, तो शायद वो कुछ साल बाद जाके उस उतना मेटल अच्छा ना लगे, वो थोड़ा रॉक या जैज या ब्लूज में आ जाए। जैसे कि अगर जब मैंने खुद म्यूजिक शुरू किया था, तब मुझे मेटल, हार्ड रॉक या फिर बहुत लाउड वो पसंद था। आज जाके मुझे मेटल म्यूजिक उतना अट्रैक्ट नहीं करता है जो ऑल्टरनेटिव रॉक या फिर ब्लूज या फिर जैज ये सब म्यूजिक करता है। तो टेस्ट शायद उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता है, मैच्योरिटी भी थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो ये तो गाने का नया गाना हो, मेलोडियस गाना हो, तो वो चलेगा, वो सुनेगा सब टाइम पे। एक टाइम पे एवरग्रीन हिंदी बहुत सारा गाना है, कुमार शानू या भी अपना किशोर कुमार, उस टाइम पे रफी, मोहम्मद रफी, ये सब बहुत तो था, वो आजीवन रहेगा। अगर नया जो गाना है वो भी मेलोडियस हो, तो वो भी लोग सुनेंगे, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चलता रहेगा, टेस्ट के हिसाब से रेवोल्यूशन होता रहेगा उसमें। जी, जी सर, दैट्स वंडरफुल। सभी का सम्मान करते हुए आपने अभी शेयर किया आपका सोच और विचार बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू। एक्सीलेंट सर। जी सर, हम ये पूछना चाहेंगे, अगर आपको मौका दिया गया पुराने पिछले एरा में जाने का, आई जस्ट पुट दैट इन द राइट वे, आप ऐसा सोचिए आपके हाथ में हम एक मिशन थाम दें और एक बटन दबाने से आप पुराने जमाने में चले जाओगे और वहां जाके किसी और का जिंदगी जीना चाहोगे, तो कौन से सिंगर या म्यूजिशियन की जिंदगी आप जी कर आना चाहेंगे सर? किशोर कुमार। वाह, एनी स्पेसिफिक रीजन? शायद इंडिया में वैसा आर्टिस्ट आया भी नहीं है और आएगा भी नहीं। वो, मैं तो कहूंगा अभी भी लिविंग लेजेंड है, वो रहे या ना रहे, मगर उस टाइप का टैलेंट, उस टाइप का वॉइस टेक्सचर जो कभी किसी कहीं पे भी गाना सीखा नहीं है, वो एक अनबिलीवेबल है। तो अगर मुझे एज अ आर्टिस्ट जीना है किसी का लाइफ, तो वो किशोर कुमार होगा। जी सर, जी सर, दैट्स रियली वंडरफुल सर। सर, आपका पहला परफॉर्मेंस कहाँ पर हुआ और कौन सी उम्र में हुआ था? मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं परफॉर्म करता हूँ, गाना नहीं, मैं ड्रामा करता था। तो वो शायद कौन सा होगा, पाँच चार पाँच 5-6 साल से तो होगा शायद। मैं वो ड्रामा करता था। फिर उसी टाइम से मैं मेरा माँ के साथ भी, माँ का जो परफॉर्मेंस होता था, माँ के साथ स्टेज में उठ के भी गाना गाता था, परफॉर्म करता था। वो पैरेलल था। वो उम्र शायद एग्जैक्टली तो याद नहीं है, 5-6 साल से ही शुरू हो गया था वो। मैं ड्रामा करता था खुद। जो पाड़ा में जो क्लब होता है,
वहाँ पे। और माँ के साथ, माँ तो तब बहुत स्टेज शोज करता था, करती थी। तब मैं माँ के साथ भी स्टेज में उठ के गाना गाता था, माँ जो गाता था उसके साथ ही। जी सर, जी सर। सर ये पूछना चाहेंगे, अभी इतने साल हो चुके हैं, अभी आप इस ब्यूटीफुल प्रोफेशन में हैं, एज एन इंडिपेंडेंट सिंगर, एज अ सोलो सिंगर एंड एज अ लिरिसिस्ट, तो आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? वाह बढ़िया है, मुझे, मैंने ये गाना गा दिया, मैंने ये हासिल कर लिया, इन माय पैशन एंड प्रोफेशन मिक्स टुगेदर। तो द वाव मोमेंट इन योर प्रोफेशन कम पैशन, और पैशन कम प्रोफेशन। देखिए, वो मोमेंट या फिर प्राउड मोमेंट वो मेरा सब है, जिसमें मुझे, जब मैं गाना गाता हूँ ऑडियंस के सामने या फिर वर्चुअली जब भी गाता हूँ, अगर कोई उसको अप्रिशिएट करता है, अगर कोई बोलता है कि ये मेरा लाइफ का स्टोरी है, मैं तो इसके साथ रिलेट कर पाया मेरा गाने के साथ, या फिर तुमने गाने में जो बोला है वो तो मेरे लाइफ का स्टोरी है, तुमने कैसे बोल दिया इसको। तो जितने बार ये हुआ है कि कोई आके बोला है कि तुमने ये जो गाना लिखा है ये तो मेरे जीवन में हो चुका है, तुमने कैसे लिखा, तो उससे, वो गाने से वो रिलेट कर पाता है कहीं पे जाके, वो उसको एक सुकून मिलता है, एक रिलीफ मिलता है कि ये गाना मुझे उस पेन से निकाला है। तो इस जितने भी इंसिडेंट ऐसे होते हैं, वो सब मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है। तब मुझे जाके लगता है कि जो जो मैंने किया है वो सही किया है। मैं ये जो किया है, ये मैं शायद और किसी जगह पे ये नहीं मिलता मुझे। ये बहुत अवार्ड, जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं, मुझे प्राइज मिला है, या फिर जो भी रेस्पेक्टेड मोमेंट्स है, वो सबसे भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है कि आपके गाने ने मुझे इस पेन से निकाला है, कि आपके गाने ने मुझे वो हैप्पीनेस दिया है जो मैंने बहुत दिनों से मुझे नहीं मिला था। मैं रोज रात आपको गाना सुनता हूँ ताकि मैं उससे निकाल पाऊँ, उस इंसिडेंट से निकाल पाऊँ। ये मेरे लिए हर एक ऐसा मूवमेंट है जब मैंने इसको जिया है। Excellent. That's wonderful. So that's really very nice. Yes. When we listen to a song that relates to us, वो situation, वो हालात जो है, हम कोई जो गाना गाते हैं तो हम लोग रेजोनेट होते हैं वो गाना से, कनेक्ट हो जाते हैं। यस, तो दैट्स वंडरफुल सर। सर अभी एक, अगर आपके तरह ही बनना है किसी और को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या थर्ड जेंडर भी हो, दे आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सिंगर एंड इंडिपेंडेंट सॉन्ग राइटर एंड ऑल ऑफ, जो है आप ही की तरह बनना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? क्या सलाह देना चाहेंगे? पहला तो है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, या फिर एज अ वोकली आप इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करो। मैं हर एक को बोलूंगा कि पहले सीखो, मन से सीखो। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बनना है या फिर मुझे परफॉर्म करना है इसीलिए मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले तो सीखो खुद के लिए। जो मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखा है, जो मैंने गाना सीखना है, मुझे लिखना सीखना है, कुछ भी सीखो खुद के लिए सीखो, कहीं पे प्रेजेंट या शो ऑफ करने के लिए नहीं। अगर खुद अच्छे से सीख पाओ तो वो सब आपको वो अप्रिशिएट करेंगे, वो होगा। अगर अच्छे से सीखो, पढ़ो, जानो म्यूजिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तब जाके जब आप वो चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके वो एक अच्छा सुनने में आएगा, अच्छा दिखने में आएगा। कि आप जब एक गिटार सीख के या फिर कीबोर्ड सीख के या फिर गाना सीख के जब आप एक गाना गाते हैं, तब जाके वो सुन के सबको लगेगा कि ना, ये सुनने में अच्छा लगा। थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा जान के बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा बनना है, ये मत करो। बहुत सारे लोग करते हैं कि थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा जान के, चलो मुझे, मेरा तो हो गया, हो जाएगा। वो नहीं होगा। वो कुछ दिन के बाद आप वैसे भी स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आप बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अच्छे से सीखो, पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है म्यूजिक, जानो। उसके बाद आपको जो बनना है आप खुद ही बन जाओगे। अगर जितना सीखोगे, जितना जानोगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद होता रहेगा। जी सर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी सी मैसेज आपने दिया।
सर हम ये पूछना चाहेंगे अभी, आपको कभी कभी गुस्सा आता है? अगर आता है, कभी कभी नहीं, कभी जब आता है गुस्सा, तो किस बात पर आती है गुस्सा आपको? एक टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता था, बहुत चीजों को लेके आता था। अभी अभी भी आता है। अभी मैं उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ, पहले बहुत रिएक्ट करता था। अभी उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ। अभी जब मुझे सच में कुछ गुस्सा आता है, या फिर मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोल के बाहर जा रहा है ये, तब मैं वो सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता हूँ कि वो सिचुएशन में ना रहूं, ताकि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं सिचुएशन में रहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं खुद को कंट्रोल जब ना कर पाऊँ, तब वो सिचुएशन वर्स में जाता है। कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है, अगर मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, तब मैं किसको क्या बोल दूं उसको। जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे जानबूझ के किसी को हर्ट करना, या फिर जानबूझ के किसी के साथ रूडली बिहेव करना, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे नेचर ही नहीं है। तो अगर होता है कि जब कोई उस सिचुएशन में गुस्से में पहुंच जाता है, तब वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो नहीं रहता है माइंड में। उसका जोन चेंज हो जाता है। तो मैं वो जोन चेंज होने से पहले ही वहां से निकलना चाहता हूँ। अगर वो जोन चेंज हो गया, तब मुझे निकलने में प्रॉब्लम होगा। मुझे दूसरे किसी को मुझको निकालना पड़ेगा वहां से। से मेरा माँ हो, मेरा वाइफ हो, मेरा बाबा हो, कोई भी है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि खुद ही मैं निकल जाऊं। तो अगर कोई दूसरा आपको उस सिचुएशन से निकालता है, तो आपको वो गुस्सा कम करने के लिए किसी ना किसी पे वो भड़ास निकलेगा ही। तो मैं किसी से भी वो निकालना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए अभी बोलता हूँ कि इस म्यूजिक सीखो, या फिर कुछ भी सीखो, ताकि जब आपको वो गुस्सा आए, आपको बहुत अच्छा लगे, कुछ भी सिचुएशन हो, आप वो म्यूजिक में निकाल पाओ। जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर बहुत दुख होता है, कुछ भी होता है, तब मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, ताकि वो जो मेरे अंदर वो है आग, वो मैं उसमें डाल दूं। किसी इंसान पे डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें क्रिएटिव फील्ड में डालो, तब वो जाके कुछ बनेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर, दैट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। सर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे, कभी कभी हम सब लोग, हर एक इंसान जो धरती पे है, हर एक इंसान एक दिन बहुत खुश, दूसरे दिन भी बहुत खुश, लेकिन तीसरा दिन एक ऐसा दिन आएगा, एक बहुत लो फील करते हैं, अचानक सा पता नहीं क्या एक डल फीलिंग हो जाती है अंदर से, वो दुनिया को फेस करना ही नहीं चाहते हैं कि भाई हम्म। ये जिंदगी क्यों मिला हमें। तो सभी वो फेजेस फेस करते हैं हम लोग सभी, एवरी सिंगल पर्सन। तो आप जब वो फेज पे हैं, वो फेज में हैं, तो आपको ताकत कहाँ से मिलती है? नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे आगे जाके साबित करना है कि मुझे मैं जी सकता हूँ, और मैं फेस कर सकता हूँ, मेरी म्यूजिक मेरे साथ है, मेरी आवाज मेरे साथ है, मेरे अच्छे विचार हैं। तो आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन, मेरे लिए एक वेपन है मेरा म्यूजिक, मेरा पेन, या फिर मेरा गिटार। तो वो वेपन को यूज करके मैं इन सब से निकाल सकता हूँ। मगर जिसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? मेरा सजेशन है कि हर एक को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ सीखो, म्यूजिक म्यूजिक ही सीखना है ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सीखो। अगर आप कुछ आपके पास होगा, आपको आपको आप खुद क्रिएट कर पाओ, ऐसा कुछ भी अगर होगा, तो इन सब से आसानी से आप निकल पाएंगे। जैसे कि मुझे अगर डिप्रेस फील होता है, तब मैं लिखता हूँ, उससे मेरा डिप्रेशन चला जाता है। मैं म्यूजिक करता हूँ, उससे मेरा डिप्रेशन जाता है। मैं गाना बजाता हूँ, गाना गाता हूँ। ये मेरे पास ये वेपन है, ताकि मैं इनको फायर करके निकल पाऊँ। तो मेरे सामने एक ब्लैक शैडो है, जिससे मैंने मेरे मेरे म्यूजिक के वेपन से फायर किया, वो चला गया। मगर जिसके पास नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसके लिए पहला तो सजेशन है, कुछ सीखो। म्यूजिक अगर सीखते, म्यूजिक से ज्यादा शायद ही कुछ है जो किसी रिलीफ जो मिलता है, वो म्यूजिक से ज्यादा रिलीफ शायद ही किसी से मिलता है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, तब मैं बोलूंगा कि गाना सुनो। अ, कुछ भी ऐसा करो जिससे उस सिचुएशन को आप डाइवर्ट कर पाओ। गाना सुनो, जिसको मूवी देखना पसंद है मूवी देखो, जिसको गेम खेलना पसंद है वो गेम खेलो।
ताकि वो जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। कुछ करो, ऐसे बैठे मत रहो। जितना आप साइलेंटली बैठे रहोगे तब उतना डिप्रेशन आपको और भी अटैक करेगा। जी सर, जी सर। सर, किसी चीज का डर लगता है? हाँ लगता है। किस चीज का डर? दो डर मेरा सबसे ज्यादा है। एक, कभी मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले ना कर पाऊं, शायद कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ भी ना हो जाए कि मेरा हाथ काम ना करे। तो अगर एक डर ये है, और दूसरा डर है कभी मेरा मतलब जो वोकल है, वोकल में कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं गाना ना गा पाऊं। अगर कभी ये होता भी है तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जीऊंगा भी नहीं। अगर मैं कभी इंस्ट्रूमेंट ना बजा पाऊं, मेरा हाथ ना रहे या फिर काम ना करे या फिर वोकल काम ना करे, तो मैं जीऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ कर लूंगा, मगर मुझे रहना नहीं है, ऐसे जीना मुझे नहीं है। तो इस दो चीज का मुझे डर है बस, और कुछ चीज का नहीं। जी सर, जी सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप क्लासेस दे सकते हैं किसी को, यू कैन हेल्प अदर्स, यू कैन डू समथिंग एल्स। हाँ यस। वो तो मैं करा सकता हूँ, मगर क्लासेस देना या फिर किसी को सिखाने के लिए खुद भी सीखना जरूरी है। जी 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 मैं जी ऐसा नहीं कि मैं मुझे सब पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं भी थोड़ा सा ही कुछ हूँ। जी ठीक सर। है। तो मुझे स्टूडेंट को सिखाना है, किसी को भी सिखाना है, तो मुझे भी नॉलेज गदर करना पड़ेगा, मुझे भी प्रैक्टिस करना, मुझे भी अपडेट होना पड़ेगा। तो अगर मेरा खुद का ही हाथ ना उठे तो तब मैं किसी को नहीं सिखा पाऊंगा। तो जब तक मैं 100% स्टेबल हूँ तभी मैं किसी को दौड़ना सिखा सकता हूँ। खुद चेयर में बैठ के किसी को दौड़ना मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए मैं खुद नहीं दौड़ूंगा, दौड़ना उस स्टूडेंट को ही है। मैं सिर्फ उस स्टूडेंट को दौड़ना सिखा सकता हूँ, दौड़ना उस स्टूडेंट को खुद ही है। तो वो चेयर पे बैठ के नहीं हो सकता। तो म्यूजिक भी ऐसा ही है, आपके पास वोकल है तभी आप किसी को गाना गाना सिखा सकते हैं। आपके पास अगर वोकल नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन से सिर्फ सिखा नहीं सकते, आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे काम करो, वहां पे ऐसे काम करो, यहाँ पे ऐसे प्ले करो, वहां पे ऐसे प्ले करो। जी सर। इस हम अब समझते हैं कि आप इतने पैशनेट हो आपका प्रोफेशन को लेके, वेरी वेरी पैशनेट। एंड आई एम श्योर जो भगवान जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है, हमेशा आपके साथ रहेंगे। एंड ब्लेस यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। Yes, all the time. And you will be fine till the very last. That's really nice. That because you have such passion towards your work, I could see that passion. Yes, dear. And we give you a lot of positive vibes. Yes, sir. Sir, आप कब मुस्कुराते हैं? किस बात पर आपको मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर? जनरली मैं जब घर में रहता हूँ, मेरे घर वालों के साथ रहता हूँ, मेरा जो कजिन्स है उनके साथ रहता हूँ, कोई भी अड्डा होता है या गप्पा होता है, तब मैं बहुत ही मुस्कुराता हूँ। इन जनरल पर्सन में जब नॉर्मल मेरा क्लोज लोगों के साथ रहता हूँ तभी मैं मुस्कुराता हूँ, खुश रहता हूँ। सब कुछ जब आदमी जब खुश रहता है तभी मुस्कुराता है, तो वो होता है। बाकी में थोड़ा मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब खुद में ही रहना पसंद करूँ, इंट्रोवर्ट बोलते हैं क्या, इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। मतलब अचानक से किसी के साथ मेरा मिलजुलना नहीं हो सकता, मुझे टाइम लगता है, मुझे वो किसी के साथ मिलने में, या फिर किसी के साथ थोड़ा स्टूडेंट के साथ वो ज्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि उसके साथ रेगुलर मेरे इंटरेक्शन रहता है। मगर Memory, I've listened to it many a times, but of past few days I haven't. Past few months, not days. Past few months I haven't listened to the song. Thank you so much, and you've sung it so beautifully. You have an excellent voice, very mesmerizing and surprising. Very nice. God bless you, sir, for singing this beautiful song. Excellent. My dear friends, have you seen the beauty of this person? The inner beauty, the inner talent, and of course, all of us should be like this, unique in our own way. And I would love that if you get the time to connect with Sir, want to learn from Sir, you please get connected with Sir, such that you too also can, not kill your talents. And you could just present it like that. You could open up and you could learn more and focus on building a beautiful future for yourself, no matter which talent you have. If you have a singing talent or with music or with anything,
use it and you could showcase it to others. Others could also benefit from it. Like today, sir sang a wonderful song for all of us. And I was very happy because that was one of my favorite songs. And I'm sure many others too would believe and agree with me that this is their favorite song as well. Dear sir, now we'll go on this beautiful round called as the rapid fire round, जहां पर आपका likes और dislikes के बारे में जानेंगे सर. ओके, श्योर। थैंक यू सर. इससे जाने से पहले आपको और कुछ शेयर करनी है, आपको कुछ मैसेज देना है बंगाली में, आप दे सकते हैं सर बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट सेशन. मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो मैंने ये इंटरव्यू किया, ये मैंने सोचा था ये बंगाली में करूँगा, मगर ये इंटरनेशनल है, तो बाहर भी शायद बहुत लोग जो मेरे ऑडियंस के बाहर भी होंगे, तो वो भी इस पॉडकास्ट को या फिर इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो इसके लिए मुझे बीच में लगा कि शायद ये हिंदी में करना सही रहेगा, क्योंकि सब लोग इनको कनेक्ट कर पाएंगे। जिनको बांग्ला आता है वो तो समझ पाएंगे ही, जिनको नहीं भी आता है उनको भी समझ आएगा। तो इसलिए ये मैंने इसलिए किया है कि वो सबको समझ में आए। और और कुछ नहीं है, सब गाना सुनो, गाना सीखो या फिर कुछ भी सीखो, खुश रहो, और नेगेटिविटी को जितना हो सके खुद से अलग रखो, और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहो। दैट्स इट। Wonderful, sir. That's a beautiful message to everyone. Thank you so much. My dear friends, you can also share your time with us like sir has shared. He has shared his wonderful thoughts and views, his passion. That's really nice. Actually, sir wanted to share it in Bengali, but sir has been very kind because Hindi is more widespread across the world. So that is why sir has been answering in Hindi, but he loves the people of West Bengal. He loves the language, Bengali language. And we thank him for sharing his time here. Now we go on to this beautiful round to know about the likes and dislikes of our special celebrity and guest. He's here with us, Somdeep Roy, sir. It'll just be for 10 minutes. But sir, 10 ही मिनट होंगे, छोटी सी राउंड है. Yes, sir. It will be a quick rapid fire. Sure. आपका सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सी है सर? एग। केक्स? एग्स। Oh, great. एग्स और ब्रेड, ब्रेड एग, ब्रेड ऑमलेट, यही मेरा रोज का है। जी, that's nice. सर, आपका सबसे फेवरेट महीना कौन सा है? अक्टूबर। कोई खास वजह सर? मेरा बर्थ है उसमें। कौन सी मेरा दिन है? 24 अक्टूबर मेरा बर्थडे है। और बर्थडे से भी स्पेशल वो कि उस टाइम पे कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है, तो वो फेस्टिव सेशन रहता है। अक्टूबर एक फेस्टिव सेशन का अच्छा टाइम है, उसमें बहुत एंजॉयमेंट करने को मिलता है, सबसे मिलना जुलना होता है। और उसके अलावा दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर ये दोनों। The exact date of your birthday, sir, which day you were? 24 अक्टूबर। 24, 24. 24 24th October. That's very nice. Thank you, sir. We will wish you on your birthday. Yes. And hey, friends, even if you get to watch this video, please note down the number and wish sir for his birthday. It will be 24th of October every year. Sir, आपका सबसे फेवरेट डे, अब संडे मंडे ट्यूसडे सभी है ना सर, तो हफ्ते का कौन सा डे आपको बहुत अच्छा लगता अभी संडे, क्योंकि वीक में एक ही दिन और एक टाइम, मतलब संडे इवनिंग ही मेरा ब्रेक रहता है, मतलब डे ऑफ रहता है। बाकी 7 दिन मुझे सुबह से रात तक काम रहता है। संडे भी मॉर्निंग में काम रहता है, सिर्फ इवनिंग को फ्री है, तो अभी के लिए संडे। है जी? आपका फेवरेट म्यूजिक सर? रॉक, रॉक म्यूजिक। एक्सीलेंट. इज इट कंफर्ट और स्टाइल? कंफर्ट और स्टाइल? कंफर्ट। सर, आपने ऐसा पैसे खर्च किया है किसी चीज पर, किसी गैजेट पर या किसी भी चीज पर आपने स्पेंड किया और फिर ऐसा सोचा क्यों मैंने स्पेंड कर दिया, मैंने शायद गलत कर दिया मैंने स्पेंड करके, ऐसा कभी फीलिंग हुआ? क्योंकि हमारे साथ ऐसे होता है बार बार. हाँ, बहुत बहुत हुआ है, बहुत है। मुझे बहुत चीजों का बहुत शौक है, ठीक है। जैसे कि एक है मेरा इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है। तो मेनली गिटार, बहुत सारा 31 गिटार है अभी मेरे पास। तो एक जब भी मुझे कुछ गिटार पसंद आता है, उसको बजा के अच्छा लगता है, मैं खरीद लेता हूँ। बाद में सोचता हूँ इतना है फिर मैंने क्यों लिया। तो एक तो ये रहता है। फिर मुझे
कपड़ों का भी बहुत शौक है मेरे पास बहुत बहुत, मतलब ऐसा बहुत सारा कपड़ा है जिसको मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि मैंने लॉट लॉट कपड़ा लेके, उसको सील टैग है, उसको अब मेरा नहीं होता है तो मैंने दे दिया किसी को। तो ये सब करके कभी कभार लगता है कि बहुत बेकार खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत हुआ है, बहुत बहुत चीजों में। जी सर, यू वेरी सो वेरी जेन्युइन एंड यू शेयरिंग दैट्स वेरी नाइस। हमारे सभी के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, शायद आप लोगों के साथ भी हुआ है। दैट्स रियली ट्रू। सर, आपका सबसे फेवरेट स्नैक? कबाब। अच्छा सर, आप जो गाते हैं ना, तो आपके लिए ऐसा कुछ खाना, ऐसा नहीं खाना है, ऐसा कुछ आपका परहेज कुछ है सर, कि भाई ये चीज नहीं जनरली खाना मेरे लिए? जनरली ऐसा कुछ फॉलो में नहीं करता हूँ, मगर ऐसा कुछ चीज है जिसको मानना चाहिए। अभी मैं मानता हूँ, पहले मैं नहीं मानता था। जैसे कि वो जो टॉक टॉक खट्टा जो होता है, खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए। और अगर आप कुछ ज्यादा कोल्ड खाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो या फिर कुछ ज्यादा कोल्ड खाते हैं, उसके बाद भी नॉर्मल वाटर पिया कीजिए, ताकि वोकल वो नेचुरल कर पाए, उसको प्रोसेस को बैलेंस कर पाए। सेम चीज गर्म के लिए भी है। अगर आप ज्यादा हॉट कुछ खाते हैं, तब भी नेचुरल पानी पीजिए, नेचुरल टेम्परेचर का पानी पीजिए, जाके वो वोकल कॉर्ड को बैलेंस कर पाए। और जिनको एलर्जेटिक कुछ प्रॉब्लम है, धूल से बच के रहिए बस, और कुछ नहीं। मास्क या फिर कुछ भी कीजिए जाकि धूल उतना आपको ना लगे। गाना जो गाते हैं, वोकल का जो काम है जिनको, उनको ये तीन चीज, ये बहुत बेसिक है, ये तीन चीज थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। अभी आपने गर्म चीज कहा है, इज इट कॉफी और टी? क्या पसंद करती हैं आप? टी टी, ब्लैक टी। जी सर। आपको कौन सा इंसेक्ट नहीं पसंद, कीड़ा, जैसे कुछ भी नहीं मॉस्किटो, पसंद, कॉकरोच, ऐसा सब रहते कुछ हैं? कुछ भी नहीं पसंद। कुछ भी नहीं, सभी सभी नहीं पसंद, ना पसंद है, ऑल इंसेक्ट्स? सब 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 कुछ भी नहीं पसंद। जी सर। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप सर। आप सुबह सुबह में उठ जाते हैं या थोड़ा सा देर होता है उठने में? काम रहता है तो मैं सुबह उठ जाता हूँ। नेचुरली मुझे 8:30 9 बजे तक उठ जाना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत लेट नाइट सोता हूँ। पहले तो मैं सुबह 4:30 5 बजे सोता था। अभी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ प्रोटोकॉल के लिए मुझे सुबह सोना पड़ता है, ताकि हेल्थ अच्छा रहे। तो अभी भी सोने में मुझे 1:30 2 तो बज ही जाता है, काम खत्म करके फिर सब कुछ रैप अप करके। तो 1:30 2 बजे सो के मैं जनरली 8:30 9 बजे तक उठ जाता हूँ। अगर मुझे कई दिन ऑफ मिला, कहीं सुबह कुछ काम ना मिला, तो मैं 11:30 12 बजे तक भी उठता हूँ। जी सर, जब आप गाना लिखते हैं तो ज्यादा पास्ट के बारे में लिखते हैं, पुराने यादों को लेके लिखते हैं, या आगे आने वाले जो है सिचुएशन के बारे में लिखते हैं, या प्रेजेंट में जो, इज इट कनेक्टेड टू द प्रेजेंट? तो आपका मेनली फोकस मैं कहाँ? प्रेजेंट में लिखता हूँ। जो मुझे इंस्टेंटली, जो मुझे हिट करता है, जो इंसिडेंट मुझे ट्रिगर करता है, मैं जनरली उसके बारे में ही लिखता हूँ। अगर कहीं अगर हुआ कि मुझे प्रेजेंट में कुछ पास का इंसिडेंट इंसिडेंट मुझे ट्रिगर किया, तो तब मैं लिखता हूँ, तब प्रेजेंट में लिखता हूँ, मगर स्टोरी का बेस रहता है पास्ट का। जी सर, जी सर। आपको शहर में अच्छा लगता है या गांव में? गांव में। अभी तो शहर अच्छा नहीं लगता गांव में। गांव में या माउंटेन में, मेनली माउंटेन में। गांव तो मैं उतना जाता नहीं हूँ, या फिर मुझे नॉलेज नहीं है उतना गांव का। मगर अगर कभी, अगर मुझे जीना होता है, अगर कोई ऑप्शन रहता है ऐसा कि मेरा जो ये लाइफ है सब ऐसा ही रहता, मुझे लोकेशन बदलना पड़ता, तो मैं माउंटेन में, पहाड़ में चला जाता। जी सर। एक सुंदर सा दिन, एक प्यारा सा दिन, बस एक शब्द में कैसे कह सकते हैं? बस एक ही शब्द में बोलना है, द बेस्ट डे और एक वेरी गुड डे। आज का दिन अच्छा सफर था, अच्छा कट गया, जो मन चाहा पूरा काम हो गया। तो ऐसे दिन को बस एक शब्द में क्या कहेंगे सर? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या बोलते हैं इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलूं मैं। अच्छा, या फैमिली, या सुख, या गाना, या म्यूजिक, बस एक शब्द में बोलना है। एक सुंदर सा दिन आपके लिए क्या मायने रखता है, तो एक ही शब्द में बोलना है। है म्यूजिक, म्यूजिक के साथ रहो बस। म्यूजिक। यस, म्यूजिक है, देन दैट्स अ ब्यूटीफुल डे। उसके सिवा मेरे पास कुछ है भी नहीं। यस। आप बीच पे या फॉरेस्ट पे कहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? माउंटेन्स तो आपने कह दिया, अगर आपको बीच और ऐसा। फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में, यस। फॉरेस्ट फॉरेस्ट। यस।
ओके, दैट्स वंडरफुल सर। अभी आप म्यूजिक में इतना मग्न है, इतना पैशन है, ये तो हम समझ सकते हैं। आपने गाया, आपने शेयर किया। अभी एक बड़ी बात है, ये है एक हुनर, एक लाइफ स्किल, पकाना, पकवान। क्या आपको कुकिंग भी आती है? आपने सीखा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं, पहले तो चाय बनाना आता, अब शायद मैं वो भी ना बना पाऊँ। कुछ भी नहीं आता है। यू वेरी हॉनेस्ट एंड जेन्युइन, यस आई गेट दैट। सर, आपका फेवरेट टीचर का नाम कौन सा है सर? स्कूल में मतलब पढ़ाई में या फिर म्यूजिक में? दोनों में, एक पढ़ाई में भी और म्यूजिक में भी। पढ़ाई में ओशिनी सर बोल के एक था मेरा फिजिक्स टीचर। वो बहुत बहुत जेन्युइन पर्सन था, तो उसको वो मुझे पसंद था। और म्यूजिक में रूपम इस्लाम, जो मैंने पहले बोला वो। जी सर। आखिरी दो सवाल सर। ये सवाल, आपको आज तक सबसे बड़ा तोहफा जो आपको मिला है वो कौन सा है? तोहफा मतलब सबसे बड़ा बोल के मतलब किस टाइप से डिस्क्राइब करूँ उसे, प्राइस के हिसाब से या फिर मुझे पसंद आया ऐसे हिसाब से? जो भी आपको मिला, कहीं से भी हो, सबसे प्यारा, सबसे खास। सबसे प्यारा सबसे खास तोहफा ऐसा सच तो कुछ नहीं है। जो भी कोई भी अगर कुछ चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, जब भी कोई कुछ तोहफा देता है वही मेरे पास मेरे लिए स्पेशल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा तोहफा किसी ने दिया वो अनएक्सपेक्टेड था, वो मुझे मिलने के बाद मुझे लगा ये तो मैं मेरे लिए एक स्वर्ग समान है। वो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कोई भी अगर कुछ भी देता है, कभी मेरा स्टूडेंट एक मुझे फ्रिज मैग्नेट दिया, वो भी मेरे लिए तब बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी मेरे दादा ने मुझे एक 60,000 रुपए का वॉच गिफ्ट किया, तब भी वो मुझे अच्छा लगता है। कोई दादा ने आईपैड गिफ्ट किया, तब भी अच्छा लगता है। तो कोई भी अगर कुछ भी गिफ्ट मन से दे तो वही मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस के हिसाब से कुछ नहीं है। जी सर। ये आखिरी सवाल सर, ये इट्स नॉट अ सवाल, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप हमारे लिए तीन अच्छे से प्यारे से शब्द शेयर कीजिए। हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आते हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू के अलावा ऐसे तीन शब्द हमारे लिए तोहफे के दौर दे दीजिए, जहां पर हम गौर कर सकते हैं और हमारी जिंदगी को आगे ले जा सकते हैं। जो ये काम आप कर रही हैं या फिर आपका टीम कर रही है, वो करते रहें, ताकि बहुत दुनिया में बहुत सारा लोग है जिसके लाइफ बहुत सारे दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है। मेरे लाइफ कितने लोगों को इंस्पायर करेगा या फिर कुछ किन को इम्पैक्ट पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, मगर बहुत ऐसा लोग होते हैं जिनको आप अगर इंटरव्यू करें, उनसे बात करें, तो वो हम सुन के इंस्पायर्ड हो। अगर किसी लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है जाता है कभी कभी अच्छे डायरेक्शन में, तो ये आप काम करते रहें। और सेकेंडली ऑनेस्ट रहे काम काम में। जो भी सवाल है या फिर जो भी इंट्रोडक्शन है वो ऑथेंटिक या ऑनेस्ट रहे। और पॉजिटिविटी जो है वो दोनों तरफ से, आपके भी तरफ से और जो आपके ऑडियंस है उनसे भी वो पॉजिटिविटी आए, ताकि आप जो सवाल कर रहे हैं या फिर जो जवाब दे रहे हैं उसमें कोई भड़क ना जाए या फिर कभी वो भटक ना जाए कि ये सुन के कि मुझे ये करना है। क्या कि होता है ना कि इंस्पिरेशन वाला जो स्पीच होता है उसमें अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जाता है तो वो सुन के जो इंस्पायर्ड होते हैं वो गलत चीज करने लगते हैं कि इसने किया है तो मैं भी करूंगा, तो शायद ये अच्छा हो। तो जनरल एस्पेक्ट से जो होता है वो पॉजिटिव रहे। कोई गलत इंफॉर्मेशन या फिर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए शायद सही हो मगर दूसरे के लिए गलत हो सकता है। ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत ये है कि जो ज्यादातर करके जो रॉक म्यूजिक करते हैं, वो अगर आप कुछ ऐसे नेशा की बोले नेशा ड्रग्स या प्लेजरिज्म। फिर, हाँ ड्रग्स या फिर प्लेजरिज्म। अल्कोहल, ये सब कुछ करते हैं, तो आपको अगर प्रॉफिट होगा या फिर कंसंट्रेशन होगा
तो ये एक मिथ है, इसको फॉलो मत कीजिए। मैं मेरे खुद के जीवन में एक मतलब सिगरेट भी कभी नहीं पिया है। तो कोई भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो जो दूसरे को भटक दे या फिर दूसरे को गलत डायरेक्शन में ले जाए, बस। यस सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी सी मैसेज आपने दिया सबके लिए, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हम सभी के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी इंटरव्यूइंग यू। इट वॉज अ प्लेजर टू गेट टू नो यू बिकॉज यू पर्सन फ्रॉम विद इन। जस्ट ऐसा दिखावे के लिए नहीं, आप अंदर से अपने मन से अपने दिल से बात किया, शेयर किया आज आपका टाइम हमारे साथ। दैट इज रियली वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच सर। वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर इंटरेक्शंस। और भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी गाना लिखते रहिए और सुनाते रहिए लोगों को, और लोग आपसे जुड़ना, लोग आपको पसंद करना। एंड यू आर वंडरफुल सिंगर इन इंग्लिश एज वेल। वो भी बहुत, टू मी दैट वाज अ सरप्राइज। वो मेरे लिए सरप्राइज था। यू सिंग वेरी वेल। थैंक यू सो दैट्स एक्सीलेंट। Stay blessed, and we wish you and all your family members a lot of happiness and joy. सेम टू यू, सेम टू यू, Thank थैंक you. Thank you. Thank you. My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks for today. Please do us a favor, share this video with the right kind of people. If anybody is interested in music, what does music mean? Please share this video with others such that others could really enjoy it. And if you like what we are doing, stay connected with us, bond with us. And of course, don't forget to follow the last 3 suggestions that Sir gave. Always be positive, be honest, and don't spread rumors. If you don't know the truth, don't spread anything negative. Let there be only positive vibes across everywhere. It applies to me. It applies to you too. And of course, if you like our videos, share, like, subscribe, comment, and live a beautiful life. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you.